Sialkot Stallions head coach. We will keep it questions regarding HBL PSL only, which is related to the auction, and we will start with the first question. You want to go first? Who? Murtada. Welcome to Pakistan. Thank you. Which areas you focus on more? All. Well, we're a brand new team, so we're focusing on all. Obviously, we've signed Steve Smith pre-tournament, which is a huge get to have one of the best players in the world for a brand new franchise. We're really excited to have him, and we've got our eyes on lots of players today, and we'll see how it pans out. Tim, lots of players from Australia is participating this year PSL. So how excited are you as a Australian, and now you are heading to the Sialkot Stallions team, which already have a brand and they won previously in national T20s with the same name. So how excited you are? Yeah, we're excited. I'm really excited to be involved with Sialkot. We've got an Australian flavour. As I mentioned, Steve Smith's already signed, and there's lots of young Australian players. And my role with Australia A, I know all of those players, so we think we'll get a few bargains out of them. And add to that, the quality Pakistan players, some of the top line players that are away at the World Cup, as well as some really exciting under-23 talent. So we're excited to get in there, start bidding and building out our team. Tim, are you excited from being the prominent keeper for the Australian side to the test captain and now the head coach of Sialkot Stallions? So how challenging and exciting are you for this role? Yeah, I've been really lucky. As you touched, to play cricket for Australia, to captain the Australian Test team was awesome when I'm playing, and now to be here coaching in the PSL, coaching the Adelaide Strikers as well in the Big Bash. So the last 20-something years in cricket, I've been really fortunate, and I'm really looking forward to joining the Sialkot Stallions and the PSL. It's a competition I've watched at home for the last few years. It keeps getting better and better, and we're looking forward to making a splash with this new team. Last question, Murtada. You are young. Why not you are playing in PSL? No, I'm 41, so I'm getting a bit older, and but yeah, I've been lucky enough to have a playing career with Australia, and now to be stepping into coaching is a new challenge and something that I'm really looking forward to. Thank you, gentlemen. क्या कहेंगे, नया रोल मिला और कौन से एरियाज़ को ज़्यादा फोकस करेंगे, क्योंकि मैचेस भी मार्च के महीने में होंगे, उस टाइम पे थोड़ी गर्मी भी लाहौर पूरे पाकिस्तान में हो जाती है? नहीं, ज़ाहिर सी बात है, नया रोल है मेरे लिए, नया चैलेंज है। मतलब 10 साल से PSL हो रहा है। फ़र्स्ट ऑफ ऑल जो है ना, इस साल जो है 2 नई टीमें आई हैं, और फिर जो है ना मुल्तान सुल्तान की जगह जो है ना अब पिंडी आ गई है। तो ज़ाहिर सी बात है कि टीमें ज़्यादा हो गई हैं, उसमें जो है काफ़ी ज़्यादा कंपटीशन भी बढ़ेगा इंशाल्लाह, और उम्मीद करते हैं कि इस साल ज़ल्मी जो है वो अच्छा परफॉर्म करेगा। ज़ाहिर सी बात है कि आज डिसाइड होगा कि क्या टीम पिक होती है ऑक्शन में, और उसके बाद जो है उसके बाद प्लान्स बनेंगे। अभी तक तो हमने फोकस किया है कि जो टीम को पिक करना है, किस टीम को पिक करना है और क्या हमारा कम्बिनेशन होना चाहिए। अजहर भाई, पर्स का इस दफ़ा थोड़ा सा बड़ा भी है और लिमिटेड भी एक तरह से हो गया है कि डायरेक्ट साइनिंग्स हुई हैं, फिर उसके बाद अब जो टीम्स बननी है स्क्वाड में, कितना चैलेंजिंग होगा आप लोगों के लिए कि बेहतर कम्बिनेशन बनाना, और इसके अलावा जो आपके कोर हैं जिनको आपने मिस किया है लास्ट टाइम, तो उनके बारे में क्या कहेंगे, उनसे किस तरह से आप पिक कर सकते हैं, कोशिश करेंगे? देखिए, कोर की जहाँ तक आपने बात की, तो वो ओपन ग्राउंड था सबके लिए, क्योंकि 2 नई फ्रेंचाइजीज आई हैं, उनको भी वैसे ही मौका मिलना चाहिए कि क्वालिटी ऑफ प्लेयर उन टीमों में भी जाने चाहिए। जाहिर सी बात है, जो आपने पर्स की बात की, तो आई थिंक ऑक्शन स्टाइल में पर्स आई थिंक वो कम ही लगता है, जितने मर्जी पैसे हों, लेकिन आपको कम ही लगता है। अगर आपकी बिड वॉर हो जाए तो उसमें आपको जो है ना वो देखना पड़ता है कि कहाँ तक आप जा सकते हैं, क्योंकि आपने पूरा स्क्वाड बनाना है उसी लिमिटेड में। तो आपने देखना है, सम टाइम आप किसी प्लेयर को चाहते हैं कि हम इस प्लेयर को लें, लेकिन आपकी प्राइस और पर्स की वजह से आप उस प्लेयर को नहीं ले सकते। तो इसमें आपकी जो है ना हिकमत अमली काफ़ी अहम रोल किरदार करेगी। अगर कौमी टीम की कोचिंग करना और PSL ज़ल्मी की फ्रेंचाइज की कोचिंग करना कोई डिफरेंस दिखते है, उसमें कोई फ़र्क होगा प्रेशर के लिहाज से? नहीं, ज़ाहिर सी बात है, कोचिंग मेरा पैशन है, ठीक है, चाहे वो मैं इंटरनेशनल टीम्स के साथ करूं या लीग क्रिकेट में करूं। जो पहले भी मैं पाकिस्तान आने से पहले भी दुनिया भर की लीग में 4-5 लीग्स में मैं कोचिंग कर रहा था। तो ज़ाहिर सी बात है कि जब आप इंटरनेशनल कोचिंग करते हैं तो उसमें आपके साथ स्क्रूटनी भी ज़्यादा होती है, उसके बाद आपके ऊपर ट्रोलिंग भी ज़्यादा होती है, और आपको लोग कस भी बहुत करते हैं। तो ज़ाहिर सी बात है, फ्रेंचाइज क्रिकेट में ये है कि आपको रिज़ल्ट देने होते हैं, 1 महीना होता है आपके पास, या 6 वीक होते हैं मैक्सिमम, उसमें आपने बेस्ट रिज़ल्ट लेना होता है। जो इंटरनेशनल कोचिंग है उसमें प्रोसेस का बड़ा इम्पॉर्टेंट रोल होता है। उसमें ये होता है कि आपने
चीज़ों को ना प्लेयर को बिल्ड करना है कि उसमें टाइम लगता है। हमें अनफॉर्चुनेटली हमें ये होता है कि आज एक बंदा आया और कल वो रिज़ल्ट दे दे, ऐसा नहीं हो सकता। उसको टाइम पीरियड चाहिए होता है, कोई भी कोच हो। अजहर भाई, आपने मुख्तलिफ लीग्स भी खेली हैं, आपने कोचिंग भी की, आपने ऑक्शंस भी सारी तकरीबन देखा। अभी PSL का पहला ऑक्शन है, पेशावर ज़ल्मी की मैनेजमेंट ये सबसे आपने उनको बताया कि कैसे प्रिपेयर होना। और कई दफ़ा हम देखते हैं कि ओवर एग्जैजरेट भी हो जाती हैं चीज़ें। नहीं, माशाल्लाह पेशावर ज़ल्मी में सेंसिबल लोग हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। मतलब उनको मुझे उनको बताने की ज़रूरत नहीं, आप अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हो और नॉलेजेबल लोग हैं, उनको पता है कि कैसे होता है, क्योंकि उन्होंने भी देखी है दुनिया भर में ऑक्शन कैसे होती है और कैसे आपने प्लान करना है। तो प्लानिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो भाई जब रिटेंशन कटी थी तो आप, खैर ये फैसला तो आपसे पहले हुआ होगा कि बाबर और साइम में से कौन है। साइम को आपने लेट गो किया और इस वक्त दूसरी टीम में वो मोस्ट एक्सपेंसिव रिटेंशन है। कोई रिग्रेट कि साइम लेट गो हुए और आपको कोई लग रहा है कि आज ऑप्शन में कोई साइम को भी प्राइसिंग में सुपरसीड कर सकता है? देखिए, अब जाहिर सी बात है कि आपकी लिमिटेड ऑप्शन है आपके पास, कि आपके पास बजट गया है। हम अगर चाहते तो दोनों रख सकते थे, लेकिन आपने पूरी टीम बनानी है। तो आपके जाहिर सी बात है, जो आपका प्लेटिनम प्लेयर है उसकी प्राइस ऊपर है, तो आप ज़्यादा प्लेयरों को नहीं रख सकते, एक ही बंदा रख सकते थे बिटवीन बाबर एंड साइम। तो डेफिनेटली जो फ्रेंचाइज का ख्याल था कि बाबर इज़ द बेस्ट सूट फॉर अस।